और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बांकुड़ा के मेजिया बोई मेला कमेटी की तरफ से कृत्रिम अंग देने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए अंग में कृत्रिम अंग प्रतिस्थापित किए गए। मेजिया बोई मेला कमेटी की तरफ से कृत्रिम अंग देने की प्रक्रिया शुरू की गई। विशिष्ट समाज सेवी मलय मुखर्जी की चेष्टा से मेजिया में बोई मेला कमेटी की तरफ से कृत्रिम अंग प्रदान करने का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन तालडंगा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने किया। इस दौरान खाद्य राज्य मंत्री ज्योत्सना मांडी सहित कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। रविवार मेजिया इलाके के विभिन्न जगहों पर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिया गया। दुर्घटना के दौरान जिन व्यक्तियों के अंग भंग हो चुके हैं उनके अंगों में कृत्रिम अंग प्रतिस्थापित किया गया, ताकि एक बार फिर से इन लोगों को जिंदगी बेहतर तरीके से जीने का मौका मिल सके। दिव्यांगों की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए जाने पर धन्यवाद दिया गया। सरकारी खाद्य दफ्तर मंत्री सम्मानिया ज्योत्सना मांडी हमारे संगे रही स्वामीजी महाराज दुर्गापुर থেকে आছেন মলয় মুখার্জি, যার উদ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নিমাই মাঝি আছেন দুর্গাপুর থেকে, নৈহাটি থেকে আমাদের গেস্ট যিনি আমাদেরকে সর্বতভাবে সাহায্য করছেন গৌরী দাস, আমরা অভিনন্দন জানাই তাকে। মানিক ব্যানার্জি আছেন, কর্মাধ্যক্ষ জেলা পরিষদ অপর্ণা সরকার, সঞ্জয় ভুই, দীপক বাবু আছেন আমাদের সাম স্টিলের, ইজ এ ভেরি গুড সোশ্যাল ওয়ার্কার। সমস্ত মেজিয়ায় এবং বাঁকুড়াতে মানুষের আপদ বিপদ হলে তার কাছ থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি। আপনারা হয়তো সকলে জানেন না, আমরা যখন করোনায় আক্রান্ত সেই সময় মানুষ যখন খুব দুরবস্থার মধ্যে ছিল, আমরা যখন বিনা পয়সায় চাল চালু করতে পারিনি, হাহাকার চলছিল, আমরা এই কোম্পানির কাছ থেকে সেই গরিব মানুষদেরকে আহার পৌঁছে দেওয়ার জন্য জঙ্গলমহলে বলুন, বাঁকুড়া শহরে বলুন, মেজিয়াতে বলুন, তাদের অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমরা ধন্যবাদ জানাই তিনি আমাদের মঞ্চে আজকে উপস্থিত থাকার জন্য। চিন্তাহরণ তেওয়ারি, প্রদীপ হালদার, মুকুল বাবু সমাজসেবী, আমাদের জহর আছে আমাদের সভাপতি, রুদ্রগোপাল আছেন যুব সভাপতি, ক্রান্তি আছে এবং আমার অনেক সহকর্মীরা আছে। বরুণ সরকার আছে। মেজিয়াতে আমার জন্ম, আমার মেজিয়া জন্মভূমি। আমি বাঁকুড়া শহরে থাকলেও মেজিয়া গ্রামের ছেলে। আমি গ্রাম থেকে বাঁকুড়ায় গেছি। বাঁকুড়া শহরের মানুষ আমাকে লালন পালন করে বাঁকুড়া জেলা সভাধিপতির দায়িত্ব দিয়েছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তার সাহায্য পেয়ে আমি জেলার উন্নয়নে খানিকটা কাজ করতে পেরেছি। বর্তমানে আমি তালডাংরা বিধানসভায় আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়েছে। আমরা জঙ্গলমহলে জ্যোৎসনা মান্ডি, আমি এবং আমার জেলা সভাধিপতি তিনজন আমরা প্রতিনিধিত্ব করে জয়লাভ করে জঙ্গলমহল আমাদের সরকারের দখলে আনতে পেরেছি। মুখ্যমন্ত্রী আমরা সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। দেখুন, মেজিয়াতে এলাম, মেজিয়া এসে আমার মনে হলো ছোট থেকে ছাত্র জীবন থেকে আমি এই স্কুলে পড়াশোনা করেছি। এই স্কুল থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছি। এই এলাকার মাটির গন্ধ আমি জানি, কিন্তু আজকে আমার রাজনীতির সার্থকতা পেলাম যে আমি এখানে রাজনীতি করে গেছি। তারপর আমার পূর্বসূরি যারা। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। चिचुड़िया हाई स्कूल में राज्य सरकार की दुआरे सरकार योजना शिविर लगाई गई और इस दौरान सभी योजनाओं के फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। खासकर लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिलाओं की काफी भीड़ शिविरों में उमड़ी हुई थी। जामुड़िया ब्लॉक 2 के चिचुड़िया ग्राम पंचायत के चिचुड़िया हाई स्कूल में दुआरे सरकार योजना का आयोजन किया गया, जिसमें 18 मुख्य प्रकल्प शिविर लगाई गई। सभी के समाधान के लिए काम किया गया। इस संबंध में चिचुड़िया ग्राम पंचायत प्रधान विश्वनाथ सांगुई ने कहा कि शिविर में खासकर लक्ष्मी भंडार योजना के काम के लिए हजारों महिलाओं ने फॉर्म भरकर जमा किया। चुनाव के पूर्व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो वादा राज्य की मां बहनों के साथ किया था, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 1000 और साधारण जाति की महिलाओं को 500 रुपए देने का, तो इसी दुआरे सरकार के माध्यम से सभी को दिया जा रहा है। लक्ष्मी भंडार का फॉर्म भरकर जमा किया गया। इसे नए बैंक खाते भी खोले जाएंगे और इस दुआरे सरकार के माध्यम से कई योजनाओं के तहत लोगों को लाभ मिलेगा।
इसमें स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने और जाति प्रमाण पत्र से लेकर सभी तरह के काम किए जा रहे हैं। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক অভিনব প্রকল্প দুয়ারে সরকার। এটাতে আমাদের টোটাল 18টা জনমুখী প্রকল্পের এখানে কাজ চলছে। তার মধ্যে প্রধান হলো লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প। মহিলাদের জন্য পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2021-এর নির্বাচনের আগে তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রতিটা পরিবারকে শিডিউল কাস্ট এবং জেনারেল কাস্টে 500 এবং 1000 টাকা করে দেওয়া হবে, সেই ব্যাপারে আমাদের এই ক্যাম্পটা বিশেষভাবে সাড়া পড়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ক্যাম্পও চলছে। উদ্দেশ্যে বলতে চাইছে আমাদের এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে সরকার প্রকল্প সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া। আমাদের যেমন প্রতিটি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে আমাদের মাইকিং করে প্রচার হচ্ছে বা পঞ্চায়েতের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে প্রচার করছে, সেটার আগেই কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ টিভির মাধ্যমে বলুন বা ফেসবুকের মাধ্যমে বলুন এটা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং তাদের আগ্রহ প্রচণ্ড। প্রধান বিশ্বনাথ সঙ্গে চুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पाल रविवार वक्तार नगर पहुंची, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ बैठक कर इलाके में हो रही सुविधा असुविधा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्रा पाल रविवार अपने विधानसभा क्षेत्र वक्तार नगर पहुंची। यहां विधायक ने दल के कर्मियों और समर्थकों के साथ बैठक कर इलाके की सुविधा असुविधा पर चर्चा की। इस दौरान विधायक अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध जमकर हमला बोला। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए विधायक ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। पारा टीचर को भी समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा मंत्री के साथ मिलने के लिए पहुंचने पर भी उनके साथ मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसके बाद पारा शिक्षकों के पास मौत का रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। शिक्षा मंत्री गणतंत्र बचाओ कर्मसूची में व्यस्त है और राज्य में शिक्षा का स्तर गिरते ही जा रहा है। उन्होंने त्रिपुरा में टीएमसी सरकार गठन करने पर धिक्कार जताया है। विधायक ने आगे कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 500 रुपए मासिक भत्ता देकर बेरोजगारी दूर करना चाह रही हैं, लेकिन बेरोजगारी सिर्फ मासिक भत्ता देने से नहीं बल्कि कोई संस्थान खोलने से होगी। राज्य में चिकित्सा व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मुख्यमंत्री नर्सों से चिकित्सक का काम करवा रही है। ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। विगत शनिवार मुख्यमंत्री बंगला बाग को लेकर कही कि सीबीडी कैसे आ रही है, जरूर इसमें बीजेपी का हाथ है। मुख्यमंत्री जिस तरह से शब्दों का उपयोग कर रही है वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। মানুষের জন্য কাজ করার এই সুযোগ এই মানুষগুলো আমাকে জিতিয়েছে, তাই প্রত্যেকটি বুথে আমার বিধানসভায় আমি যাচ্ছি। মণ্ডল 1, মণ্ডল 2, মণ্ডল 3, মণ্ডল 4, 4টে মণ্ডল আমার বিধানসভায় এবং প্রতিটি মণ্ডলে 2টো করে কি 4টে করে বুথে আমি যাব। সাধারণ মানুষের কী সমস্যা সেটা জানবো, তারা আমাকে একটি চিঠি দেবে বা অ্যাপ্লিকেশন লেটার এবং সেইটিকে নিয়ে আমি তার সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় কর্পোরেশনকে বলে হোক কি কোনো অন্য কাউকে বলে হোক সেটার সমস্যার সমাধান করব। সেই কারণেই আজকে বক্তারনগরে আসা এবং আশেপাশের মানুষ জলের সমস্যা ভীষণ, তো কলের ব্যাপারে বলতে হবে। এখানে প্রচুর মানুষ ভ্যাকসিন পায়নি, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে এখনই বলছিল যে ড্রেন, আজকে বহুদিন আগে ড্রেন হয়েছে সিপিএম আমলে, কিন্তু সেই ড্রেন কমপ্লিট হয়নি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা, একজন ডাক্তারবাবু বসেন ঠিকই কিন্তু অনেক বড় জায়গা, অনেকভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায়। সেখানে বেড দিয়ে ফুল টাইম একটা ছোটোখাটো প্রাইমারি হেলথ সেন্টার করা যায়, শুধু আউটডোর নয়, সেখানে এমার্জেন্সি পেশেন্টও নেওয়া যাবে, সেই জায়গা রয়েছে, সেটা নিয়েও আমি এগোবো। এখানে একটি আদিবাসী পাড়া আছে, সেখানে কোনো গার্বেজ ফেলার জায়গা নেই, তো ওরা খুব চাইছে যে একটা যদি সিমেন্টের জায়গা করে দেওয়া যায়। সবাই ভালোভাবে থাকতে চায়, সবাই ভালোভাবে বাঁচতে চায়, যার যেরকম ফিনান্সিয়াল অবস্থা, ইকোনমিক অবস্থা, কিন্তু তার মধ্যেই সে গুছিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে চায়। সেটাই আমি চেষ্টা করবো যাতে মানুষ শান্তিতে আমার এলাকায় অন্তত বাঁচতে পারে। দেখুন আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় গিয়ে বা টিএমসি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सभापति ऋतुव्रत बनर्जी पार्टी के कार्यक्रम के लिए आसनसोल जा रहे हैं।
इसी दौरान रानीगंज के पंजाबी मोड़ में पार्टी कार्यकर्ता और नेता द्वारा फूल माला पहनाकर गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। INTTUC राज्य अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी रविवार आसनसोल दौरे पर पहुंचे। इससे पहले जगह जगह उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में भी पश्चिम बर्धमान जिला युवा तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष साधन सिंह के नेतृत्व में ऋतुव्रत बैनर्जी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तृणमूल कांग्रेस कर्मियों की तरफ से उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया गया। इस दौरान हॉकर्स यूनियन जिला उपाध्यक्ष सजल महतो, आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दिवेंदु भगत सहित TMC पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऋतुव्रत आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग स्थित एक निजी मैरिज हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बनर्जी जिंदाबाद, 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद, 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 अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, 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 अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, 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 जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद, 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 अमित खड़क जिंदाबाद, 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 खड़क जिंदाबाद, 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 हमारी मनोज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ব্যানার্জি স্বাগত করে করলেন আপনারা কিভাবে করলেন? আমরা আজ পাঁজাই মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সব আমাদের যত INTTUC নেতা যত লোক আছে, ছেলে কর্মী, আমরা হচ্ছে প্রগতিশীল হকার ইউনিয়নের জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমি সজল মাহাতো। আমরা সব এখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবাই আমরা এখানে রিসেপশন করার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সমাধান কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার জন্য আমাদের একটু অসুবিধা হলেন, উনি তবু আমাদেরকে কাজ করলে আমাদের সাথে দেখা করলেন, এটাই আমাদের জন্য বহুত গর্বের ব্যাপার। আমরা সবাই এখানে জড়ো, এখানে বহুত মানুষ জড়ো হয়েছিল, এই বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়েছিল। আপনার নাম? সজল মাহাতো। আমি হোকার ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब जाते हैं हम खबरों की ओर। आगामी 1 सितंबर को पश्चिम बर्धमान जिले में राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का आगमन होने वाला है। मुख्यमंत्री के आगमन के पहले अवैध बालू उत्खनन पर अंकुश लगाने हेतु प्रशासन द्वारा धरपकड़ की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 1 सितंबर को पश्चिम बर्धमान जिले में राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का आगमन होने वाला है। मुख्यमंत्री के आगमन के पहले अवैध बालू उत्खनन पर अंकुश लगाने हेतु प्रशासन द्वारा धरपकड़ की गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बीते रात दुर्गापुर महकमा के विभिन्न थानों की पुलिस ने छापामारी अभियान चलाते हुए अपने अपने इलाकों से 10 बालू माफियाओं को गिरफ्तार करते हुए कई सेफ्टी स्टॉक बालू जब्त किए हैं। इस दौरान पांडवेश्वर थाना की पुलिस ने अभियान के तहत केंदा के दुर्गा मंदिर इलाके निवासी बालू माफिया पार्थ चैटर्जी, गोविंदपुर निवासी चितरंजन गोराई एवं सुभाष चंद्र लाहा को हिरासत में लिया। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना की पुलिस ने बांकुड़ा जिला के बारजोड़ा निवासी मोहम्मद रफीक हाजरी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा लाउदोहा थाना की पुलिस ने गौर बाजार निवासी लालटू मंडल उर्फ किरण को हिरासत में लिया। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने सुकांतोपल्ली निवासी पवन सिंह, टुनटुन सिंह एवं जितेंद्र कुमार नामक 3 युवकों को हिरासत में लिया। अंडाल थाना की पुलिस ने बालू चोरी के आरोप में रानीगंज के बख्तार नगर निवासी किरण खान को भी गिरफ्तार किया। रविवार सभी आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की काजोड़ा एरिया त्रिशक्ति महिला शाखा की ओर से जामबाद कोयलेरी स्थित बालू बंकर के ईस्ट जामबाद माझी बस्ती में गरीब और जरूरतमंद 100 परिवारों के बीच खाद्य पदार्थ वितरित किए गए। डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल के काजोड़ा एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल शाखा की ओर से जामबाद कोयलेरी स्थित बालू बंकर के ईस्ट जामबाद माझी बस्ती में गरीब और जरूरतमंद 100 परिवारों के बीच खाद्य पदार्थ वितरित किया गया, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो मसूर दाल, 2 किलो आलू, साबुन, छाता और मच्छरदानी तथा अन्य जरूरत के सामान दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम की देखरेख कर रही काजोड़ा एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल अध्यक्षा राजेश्री राय ने कहा कि डीसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा माननीय पूनम मिश्रा जी की दिशा निर्देश पर ईसीएल की विभिन्न एरिया शाखा की ओर से ऐसे महत्ती कार्य किए जा रहे हैं।
इसी आलोक में काजोड़ा एरिया त्रिशक्ति महिला मंडल की ओर से लगातार कोरोना से लेकर अब तक लगातार गरीब बस्ती पिछड़े गांवों के गरीब और असहाय परिवारों को राशन दिया जा रहा है। आगे भी हमारा यह अभियान जारी रहेगा ताकि कोरोना के समय एक भी गरीब परिवार भूखा ना रहे। हमारे लोग गांव-गांव में घूम कर ऐसे परिवारों को चिन्हित कर उन्हें खाद्य पदार्थ पहुंचाते हैं। हमारे इस कार्य को सफल बनाने में संगीता कनौजिया, सीमा दत्ता, मंजू सिंह, इंदु आनंद और शोभम कर्मकार मौजूद रहे। ये हमारा कार्यक्रम दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल काजोरा शाखा के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम अपने 50 ज़रूरतमंद बहनों को राशन और छतरी और छाता ये दे रहे हैं। राशन में 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 2 किलो आलू, डेटॉल साबुन, विम बार, नमक और छाता और मच्छरदानी है। मौसम के हिसाब से हम चीज़ें देते हैं और ये सारा कार्य दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा माननीय श्रीमती पूनम मिश्रा महोदया के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में हो रहा है। ECL के जितने भी हमारी शाखाएं हैं दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की, सभी शाखाओं के द्वारा ये कार्य नियमित तौर पे किया जाता है। प्रति माह हम अपने आसपास के ऐसे जगह को चुनते हैं जहां लोगों को हमारी ज़रूरत है और वहां उनको मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री दी जाती है। आपका नाम? राजश्री राय, मैं काजोरा शाखा दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। भारत की पहली पर्यावरण अनुकूलन 50 मेगावाट एम्पियर रिएक्टर मशीन का आसनसोल के सालानपुर ब्लॉक अंतर्गत रूपनारायणपुर स्थित NTPC मैथन पावर ग्रिड में बीते शुक्रवार को ग्रिड महाप्रबंधक के हाथों रिएक्टर मशीन को चार्ज कर शुभारंभ कर किया गया। रवि अभी क्या গত মে মাসে আমরা যে উদ্ভিজ তেল সম্পৃক্ত রিয়েক্টর 50 MVAর রিয়েক্টরটা নিয়ে এসেছিলাম সামগ্রিক এলাকায় ভোল্টেজ কন্ট্রোল এবং ভোল্টেজ উন্নত মানের ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য। সেটাই করোনা সময়কালেও সকলের অত্যন্ত সহযোগিতায় এবং দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে আজকে এটা কমিশন মানে সিস্টেমে এলো। আজ থেকে এর উপযোগিতা শুরু হলো, কাজ করা শুরু করলো। এটা একটি বিশেষ ধরনের রিয়েক্টর, যেটা আগেই বলেছি এই ধরনের রিয়েক্টর ভারতবর্ষতে নেই, পৃথিবীতেও খুব কম জায়গায় আছে। এটা মূলত পরিবেশ বান্ধব, ফায়ার হ্যাজার্ড বা অগ্নি সংযোগ বা এই ধরনের বিপদ আপদ এটাতে নেই বললেই চলে। রক্ষণাবেক্ষণের খরচ খুব কম, রক্ষণাবেক্ষণও নেই বললেই চলে। তো আজকে ইস্টার্ন রিজিয়ন 2 পূর্ব ভারতের একমাত্র সাবস্টেশন মাইথন, আমরা এই সুযোগটা পেলাম এই ধরনের একটা মেশিনারিকে কমিশনিং করানোর। সকলের তরফ থেকে আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা সকলে গর্বিত বোধ করছি। স্যার, এটা কি পৃথিবীর অন্যতম এখানেই বসানো হয়েছে মেশিনটি? এটা এখানেই বসানো হচ্ছে, ভারতবর্ষে ফার্স্ট, ভারতবর্ষে প্রথম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বসানো হয়েছে কিন্তু এই ভোল্টেজ ক্লাসে 4 লক্ষ ভোল্টে বসানো হয়নি।
তো এটা থেকে সুবিধা কি পাওয়া যাবে, অন্যান্য সুবিধা কি সুবিধা পাওয়া যাবে? সুবিধা মানে এটা একটা টেকনোলজির একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সুবিধা একই রকম পাওয়া যাবে, আরও বেশ কিছু রিঅ্যাক্টর এখানে আছে বা ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আছে। সুবিধা মূলত একই পাওয়া যাবে, কিন্তু এটা একটা নতুন টেকনোলজি দিগন্ত উন্মোচিত করলো। এই ধরনেরও রিঅ্যাক্টর যে মানে বানানো সম্ভব, সেটা এটা একটা পাইলট প্রজেক্ট। অতএব এর সুফল আগামী দিনে আমরা পাবো। এই ধরনের রিঅ্যাক্টর আরও এই তেল সমৃদ্ধ, উদ্ভিজ তেল সমৃদ্ধ রিঅ্যাক্টর আগামী দিনে আরও এটা সাকসেসফুল হলে আরও বেশি করে আসবে, বেশি করে লাগানো হবে, কারণ তার এক্সপিরিয়েন্স এসে যাবে সকলে। এই তেল কোথা থেকে মানে আনা হয় মূলত, এখন কোথা থেকে? ভারতবর্ষেই তৈরি হয়, বিদেশি কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে ভারতবর্ষেই বানানো হয়। মানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এখন, মানে ভারতবর্ষেই অ্যাভেলেবেল। স্যার আপনার নাম? আমি উজ্জ্বল মুখার্জি, মানে পদ? আমি জেনারেল ম্যানেজার, মাইথন পাওয়ার। आसनसोल के काली पहाड़ी के निकट शनिवार को आसनसोल से रानीगंज जाने के क्रम में यात्रियों से भरी एक मिनी बस एक टैंकर से जा टकराई। दुर्घटना में मिनी बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट हो गया। क्या चीज़ का? बस में बोल रहा है, मिनी बस में। भैया थोड़ा ड्राइवर क्या हुआ था यहाँ पे? अभी यहाँ पर बस आसनसोल की तरफ से आ रही थी रानीगंज जाने के लिए। जाने के क्रम में बस बाईपास क्रॉस कर रही थी। इस समय तेल टैंकर का जो गाड़ी है व्हीकल, वो पुलिस स्पीड में आते हुए बस को मारा है। बस में 8-10 व्यक्ति खूब ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 का अवस्था कंडीशन ख़राब है। हम लोग सबको तुरंत यहाँ से व्यवस्था करके हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। टैंकर का ड्राइवर कहाँ है? टैंकर का ड्राइवर को हम लोग सेव करके रखे हुए हैं, पुलिस कस्टडी में हम लोग दे दिए हैं। अच्छा, पुलिस कस्टडी में। बालू तस्करी एवं अवैध बालू पर नकेल कसने का निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही दे चुकी है। इसी के तहत बीते कुछ दिन पूर्व बालू तस्कर सुजय पाल उर्फ केबू को गिरफ्तार किया गया था दुर्गापुर अंचल से। वहीं शनिवार की रात रानीगंज पुलिस ने रानीगंज के मेजा के पास दामोदर नदी के समीप अवैध रूप से बालू स्टॉक के मामले में अरिंदम सिंह उर्फ जॉय को गिरफ्तार किया। तस्करी एवं अवैध बालू पर नकेल कसने का निर्देश राज्य की मुख्यमंत्री पहले ही दे चुकी है। इसी के तहत बीते कुछ दिन पूर्व बालू तस्करी में संलिप्त सुजय पाल उर्फ केबू को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के एनफोर्समेंट ने दुर्गापुर अंचल से गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा लगातार अवैध बालू कारोबारी अभियान के तहत शनिवार की रात रानीगंज पुलिस ने रानीगंज में मेजा के पास दामोदर नदी के समीप अवैध रूप से बालू स्टॉक के मामले में मिनरल्स एक्ट के तहत अरिंदम सिंह उर्फ जॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार कर रविवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। इस संबंध में एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने बताया कि अरिंदम सिन्हा पर खनिज अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत BLNL-RO ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अवैध रूप से बालू का स्टॉक करना और उसे बेचना शामिल है। ज्ञात हो कि फिलहाल बालू का कारोबार पूरी तरह से बंद है, बल्कि जो बालू घाट सरकार द्वारा लीज पर दी गई थी उसका चालान भी विभाग ने वापस ले लिया है। इसके बावजूद अरिंदम सिन्हा ने व्यापक पैमाने पर बालू स्टॉक किया है।
तथागत पांडे ने बताया कि अरिंदम सिंह को पूछताछ के लिए आसनसोल कोर्ट से 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जहां 5 दिन की पुलिस रिमांड का आदेश दिया गया है। पुलिस का मानना है कि अरिंदम सिन्हा दामोदर नदी के समीप मेजिया ब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे जंगल में सैकड़ों डंपर बालू जमा किए थे, जिसे बारिश के मौसम में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जिसकी मदद से इतनी बड़ी मात्रा में बालू जमा कैसे की गई और इस काम के लिए कौन कौन शामिल है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति अवैध बालू के कारोबार में लंबे समय से लिप्त था। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।